A very good morning to all of you. In today's class, we will discuss the exercise of chapter number 13, data handling, and this exercise is do and learn of page number 206. So, read out the first question. The first question is, the table below shows the favorite fruits of children in class 4B. There are 40 children in the class. मीन्स यहाँ पे एक क्लास है क्लास 4B और उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स का हमको फेवरेट फ्रूट डिवाइड करना है. सो देयर इज़ अ टेबल इन विच फोर fruit are given: apple, banana, orange and pear, and there are number of children which is divided in different groups. So this is 10 for apple, means 10 students who like apple, then 8 banana, 14 children, 14 orange, and 40 children liked orange, and 8 children like pear. So there are 3 pie charts are given here, and we have to find out that which pie chart is correct for this data. So look at here. In the first chart, there is 10 apple, 8 pear and 8 banana, and 14 children for orange. But there are 10 and 8, 18, and 8, 26. So 26 is given for half and 14 is for remaining half. So how is that possible that 26 is equal to 14? It is wrong ना. This graph is wrong. यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा कि हम सिर्फ आधे ग्राफ में क्या करें, 26 चिल्ड्रन को डिवाइड कर दें और आधे में 14 चिल्ड्रन को करें. इक्वल होना चाहिए, तो ये ग्राफ को हम रॉन्ग कर देंगे. देन नेक्स्ट जो है वो क्या है कि एप्पल के लिए 10 ठीक है, बनाना के लिए 8 भी ठीक है, ऑरेंज 14 फॉर ऑरेंज इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट 8 फॉर पियर एंड दिस 8 इज़ ग्रेटर देन दिस 8. यदि 8 हमने डिवाइड इक्वल किया है तो एटलीस्ट ये ग्राफ में इक्वल शो होना चाहिए, बट ये तो रॉन्ग हो गया. देन नेक्स्ट पाई चार्ट जो है दैट 10 फॉर एप्पल, ओके, 8 फॉर बनाना, 8 फॉर पियर एंड 14 फॉर ऑरेंज. So it seems look correct because this 8 is equal to this 8, means this graph looks similar to this one, and so we can say that the pie chart C is absolutely correct. तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले ये क्वेश्चन नोट करना है. फर्स्टली यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, देन मेक ऑल दिस 3 पाई चार्ट, और सॉल्यूशन में क्या करना है, इस पाई चार्ट को बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, सो देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, मनीषा हैड बीड्स इन 3 डिफरेंट कलर्स. 1/3 of her beads are red, 1/6 of them are green, and rest are white. Which one of the following pie chart shows the above information correctly? यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही ये पाई चार्ट्स दिए हैं और इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा. लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो किस में है, फ्रैक्शन में है. तो सबसे पहले तो हमको वाइट बीट्स का भी फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ वाइट बीट्स. So look at here, red beads, fraction of red beads is equal to 1/3. Then fraction of green beads is equal to 1/6, and rest are white. So the total fraction is 1. मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने ग्राफ स्टार्ट किए थे, पाई चार्ट स्टार्ट किए थे, कि जो टोटल फ्रैक्शन होता है वो 1 हम लेते हैं, ठीक है. देन फॉर फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ वाइट बीट्स
we subtract these two fractions from 1. Is equal to 1 minus 1/3 minus 1/6. अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? सो फर्स्टली वी हैव टू इक्वेट द डिनोमिनेटर. सो वी कैन राइट इट the fraction. Firstly, take LCM of 3 and 6. This is 2, 2 3 is 6, and this 3, 3 1s are 3, and 3 1s are 3. So the LCM is 2 multiply 3 is equal to 6. Then take LCM 6, which is denominator. So here 1, and how to equate 1 to 6? So we multiplied it by 6. So this 6, then 3 2s are 6, so 1 2s are 2, and this 6 1s are 6, so 1 same. Then 6 minus 3 is 3 by 6, or we can write it as 1 by 2, because when we divide both numerator and denominator by 3, it is 1 by 2. So we find that fraction of white beads is 1 by 2. Now it's time to find out the correct pie chart. So there is 3 pie charts. First, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यदि वाइट बीड्स हमारी हाफ हैं तो वो पाई चार्ट में भी हाफ होनी चाहिए. ठीक है, सपोज ये वाइट बीड्स यहाँ पे हाफ हैं, ठीक है, ये करेक्ट है. देन ये वाइट बीड्स में भी ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द कंपैरिजन ऑफ रेड बीड्स एंड ग्रीन बीड्स. हमको रेड बीड्स और ग्रीन बीड्स का कंपैरिजन देखना पड़ेगा क्योंकि इनका फ्रैक्शन डिफरेंट है. सो सबसे पहले तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर इन बिटवीन रेड बीड्स एंड ग्रीन बीड्स. तो रेड बीड्स का फ्रैक्शन क्या है? 1/3. एंड वाइट बीड्स का फ्रैक्शन क्या है? ग्रीन बीड्स का फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन बीड्स? सो इट इज़ 1/6. नाउ यदि अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि विच वन इज़ ग्रेटर? सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी इक्वेट द डिनोमिनेटर. तो यदि हम 1/3 को 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट दैट फ्रैक्शन 2/6. अब हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं. सो विच वन इज़ ग्रेटर इन 2/6 एंड 1/6? सो ऑब्वियसली 2/6 इज़ ग्रेटर बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर. ओके, सो इट मीन्स रेड बीड्स फ्रैक्शन ऑफ रेड बीड्स इज़ ग्रेटर. अब हमको यहाँ पे भी देखना है कि वो ग्राफ में भी वो शो होना चाहिए कि रेड बीड्स का जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो उसका एरिया भी वो ज़्यादा कवर करेगा. लेकिन फर्स्ट ग्राफ में तो इन्हें इक्वल कर दिया. हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट दीज आर इक्वल? सो इट इज़ रॉन्ग. देन नेक्स्ट, तो रेड बीड्स का फ्रैक्शन ग्रीन बीड्स से ज़्यादा है, और हमने यही पढ़ा है कि रेड बीड्स का फ्रैक्शन ग्रीन बीड्स से ज़्यादा आ रहा है. सो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं. थर्ड वन देखते हैं. यहाँ पे दैट एरिया ऑफ ग्रीन बीड्स is greater than red beads, so it is impossible. It means that pie chart by is correct answer. Okay, so इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नोट करना है, देन ये सॉल्यूशन नोट करना है. क्वेश्चन नोट करने के बाद ये तीनों ग्राफ बनाने हैं. उसके बाद ये सॉल्यूशन नोट करना है, और इसके बेसिस पे आपको बताना है दैट पाई चार्ट y इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 2 क्वेश्चन. सो ओके, दैट्स फॉर ऑल. ओके, थैंक यू क्लास.